Hello. Hello. جی سر کلیئر آواز آپ کی سر. السلام جی علیکم جی. سر. وسلام. علی کیسے ہو بھائی؟ اللہ کرم سر، آپ سنائیں ٹھاک ہیں؟ آپ کہاں تھے؟ یو آر ناٹ اٹینڈنگ یور کلاسز. سر مائی ایگزامس فار گوئنگ آن سر. تو ایگزامز ابھی ہو چکے ہیں یا ابھی ابھی جاری ہیں؟ سر ویڈنسڈے کو تھا سر، آخری سر ہو گئے سر. اچھا ہو گیا. جی سر. جی سر. تو کیسے ہو گئے؟ سر اچھے ہو گئے سر، دعا کیجیے سر باقی. چلو اللہ کرم کرے گا. ٹھیک انشاءاللہ. ہے. اور یہ رمیکس دورانی پلیز ڈو یو لائک ٹو انٹروڈیوس؟ Excuse me. May I know about you, Ramix Durani, please? بیٹا جی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی سر آواز آ رہی ہے. نہیں میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں RAMEEX دورانی. جی پلیز آر یو لسننگ می؟ علی جی سر. آپ نے کچھ اس حوالے سے کچھ پڑھا ہے کچھ اباؤٹ KM نالج مینجمنٹ؟ نو سر، فرسٹ ٹائم سر پڑھ رہا ہوں سر. اچھا تو ابھی سر میری کوشش ہوگی کہ میں نے لاسٹ 4 لیکچرز آپ کے مس کیے ہیں ان کو کور کروں سر پہلے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے پوچھ بھی لیجیے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ سر. The best way is that if you are making voice call, I can reply you through the voice call if you people have some sort of question. Is it تھینک یو ویری like مچ سر. جی don't worry about this one. تو کیمپس میں بھی ابھی آپ لوگ کوئی فیس ٹو فیس بھی کلاس لے رہے ہیں علی؟ سر ابھی کیمپس میں اسٹریٹجک لیول کی سر کلاسز اسٹارٹ نہیں ہوئی سر ابھی. تو اگر وہاں ہوتی ہیں تو یو ول بی انٹرسٹڈ ٹو جوائن؟ یس سر آئی ول بی انٹرسٹڈ سر. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یو کین کنورٹ فار ایگزامپل کہ جی اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ لوگ یہ لینا چاہیں آن سر لائن. اور اپ ٹو مائی نالج جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا سر آن لائن کلاسز میں تو میم نے مجھے بتایا تھا کہ جب آف لائن کلاسز شروع ہوں گی تو آپ کے پاس دونوں آپشنز ہوں گے، آپ دونوں ایک ساتھ ہی لے سکتے ہیں. نہیں میرا خیال تو ایسا ہوگا، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یو میں جوائن دس گروپ. چونکہ یہ ایک اوور آل ICMAP کی طرف سے ہے، وہ بھی ایک ہوگا. تو میرا خیال ہے جیسے اگر سپوز اگر کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو ضرور جوائن کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فیس ٹو فیس نیچرلی آئی تھنک دیر ول بی. سر میں نے یہ کلاس جوائن ہی اسی لیے کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ فزیکل سٹارٹ ہوں گی بائی دا اینڈ آف اکتوبر سر، لیکن ابھی تک کوئی سٹارٹ نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کوئی شیڈول دیا ہے. نہیں وہ میرا خیال ہاں جی ایسا ہی ہے. آئی تھنک دے مائٹ بی سرچنگ فار اے ریزنیبل اسٹرینتھ. فار یس سر. ایگزامپل اف دا اسٹرینتھ از ناٹ اے ریزنیبل تو وہ شاید پھر نہ کریں. سر اگر وہ ایک شیڈول دے دیتے ہیں نا تو سر ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ بچوں کو نہیں پتا کہ ابھی ہونی بھی ہیں کہ نہیں ہونی. اگر وہ نہیں اس میں شیڈول دے ایسا دیتے ہیں ہے تو لوگ علی یو میں گو پے وزٹ. اور آپ لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی میم ہمیں کچھ آپ اسٹارٹ کریں تو تھوڑا سا نوائز لیول بڑھ سکتا ہے تو مائٹ بی لیکن وہ میرا خیال ہے مجھے ذکر کر رہی تھی کہ جی اگر ریزنیبل اسٹرینتھ اگر ہو جاتی ہے تو وی مے بی تھنکنگ ٹو اسٹارٹ دا کلاس. ٹھیک ہے سر، میں کل ہی سر وزٹ کر لیتا ہوں. رمیکس دورانی پلیز آپ مجھے سن رہے ہیں بیٹا؟
Excuse me? Excuse me? सर वैसे एक्सपेक्टेड डेट्स कब है सर हमारे एग्जाम्स की सर? कौन सी? जो सर हम इस कौन? सेशन के एग्जाम्स होंगे सर, हम ये देंगे बेटा सर। ये तो जो है ना ऑफिस वाले ही बताएंगे। इसका मतलब है कि जी मेरा ख्याल मुझे तो वही है कि या तो दिसंबर एंड या जैन में हो सकते हैं। तो ठीक। लेकिन ये कि फाइनली चूंकि ऑफिस मैटर्स हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अली ठीक है सर। एक्चुअली नॉलेज मैनेजमेंट। और थोड़ा सा मैं बल्कि यहाँ से जम करते हुए आई बी गोइंग टू टॉक। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, बल्कि इसमें हम आगे फिर इसको थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और फिर एक्सपर्टीज के हवाले के साथ। बट इनिशियली एज दिस pyramid has been constructed, so it means in the base there is a data, and then data is converted into information. Information might be converted into knowledge, and then expertise would be there. So, in fact, nowadays this is a highly important one because the learning is essential for everyone, for the human. और नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग दी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी किसी चीज़ के हवाले से है। फॉर एग्जांपल, this is knowledge management. If you people need what are our courses, what are the topics, and when even the exam to be conducted, or what would be the pattern, this is all information must be shared one. So naturally I think as more and more informations or knowledge is available, so I think the concerned human resource in whatever the capacity वो क्या होंगे बेहतर होते हैं। दिस इज आइडिया कि जी आप ह्यूमन कैपिटल को उधर लेके जाने के लिए उसकी जो स्किल्स हैं उसका बेनिफिट उसको तो आपको नॉलेज देना होगा। नॉलेज मीन उसको अवेयर्ड करना होगा, वो जानता हो कि व्हाट इज माय जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट आर द नॉलेज, एंड सो ऑन। ये इसका बेसिक पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि knowledge management is what knowledge management refers to multidisciplinary approach to achieve organizational objectives by making the best use of knowledge। मीन हमने जो बेस्ट यूज ऑफ नॉलेज करके हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। केएम focuses on processes such as acquiring, creating, and sharing knowledge, and the cultural and technical foundation that support them. So I think this is the point, like कि जी हम केएम के अंदर we are supposed to acquire knowledge जो है वो acquiring होती है, फिर हम create करते हैं और फिर हम sharing of knowledge करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ जहाँ में जो हमारे जिनको कंसर्न क्वार्टर्स को वो इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड द कल्चरल एंड टेक्निकल फाउंडेशन, और हम इसकी बेसिस के ऊपर ये भी है कि हम एक कल्चरल फाउंडेशन जो अल्टीमेटली हमारे लोगों को, वर्कर्स को, मैनेजर्स को फिर सपोर्ट करती है। इसकी मैं सिंपल सी बात अगर ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को समझाने के लिए कि हमें नॉलेज एक्वायर करना है, क्रिएट करना है और फिर शेयरिंग करना है, और साथ साथ एक कल्चर सेट करना है। चूँकि जो कल्चर कल्चर आपको वो इंड्यूस करता है कि ये काम आप करो। जैसे अगर आपका लर्निंग और इन्वायरमेंट हमने बनाना है, तो नेचुरली उसके पीछे लॉजिक ये है कि लोग सीखें और अपने आप को डेवलप करें। ठीक है, ऑनगोइंग उसमें इम्प्रूवमेंट्स हों। तो वी हैव टू मेक आवर कल्चर प्रोग्रेसिव, ओपन, शेयरिंग कल्चर, जिसमें कोई लोग छुपाएंगे नहीं। इफ़ आई हैव सम इंफॉर्मेशन, I have to share among all students. If student have some sort of information, वो मेरे साथ शेयर। तो कल्चर आप ऐसा बनाते हो जिसमें अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन,
एग्रेसिवनेस आप लेके आते हो, स्टेबिलिटी आप, तो मतलब है कि जब कल्चर आपका वो उस टाइप का होता है तो वो आपको हमेशा फिर सपोर्ट करता है अल्टीमेटली टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. Another point of view is this one. The purpose of knowledge management is to provide the right information to the right people at the right time to enable informed decisions making, which enable service provided to more efficient and improve the quality of service delivered. देखो ऐसा है कि हर वो तमाम लोग जिस जिस लेवल पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, my dear, you cannot make a right decision if accurate and timely information is not available. तो आपकी अगर डिसीजन की क्वालिटी को बेहतर करना हो तो मेरा ख्याल है हमें कंपनीज के अंदर एफिशिएंट और इम्प्रूव्ड डाटा हमें ज़रूरत होगी कि वो सब लोगों को पता हो. तो ओवरऑल हमें जो समझ आई कि वो ये है कि ये एक नॉलेज मैनेजमेंट इज़ acquiring, क्रिएटिंग और शेयरिंग नॉलेज है जिससे हम लोगों को इस तरीके से तैयार करें कि वो डिसीजन कर सकें और अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर हो सके. Ali, I hope so कि you got Yes, sir. the basic theme. Yes, sir. Thank you, sir. Fahad ji, Fahad, you have joined. Welcome. Fahad. Yes, sir. थैंक यू. जी जी प्लीज. ओके ओके ओके. अच्छा जी, अच्छा आप आइए. इन वेरी सिंपल सेंस ये वही उसकी डेफिनेशन ही है, मतलब है कि जी नॉलेज केएम इज द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस दैट गवर्न द क्रिएशन, डिसैमिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज. अब देखो अल्फाज डिफरेंट हैं बट आई थिंक वहाँ हमने कहा क्वायरिंग, क्रिएटिंग और हमने बात की थी शेयरिंग की बात वही है कि हम क्रिएट करेंगे. डिसैमिनेशन से क्या मतलब होगा? सर हम आगे सर डिलीवर करेंगे सर. स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या है इसके? अ, ठीक है, बात ठीक है आपकी. मैं थोड़ा सा अली को याद दिलवाना चाहता हूँ. मैनेजमेंट के अंदर मैनेजेरियल रोल हैं वो मिन्सबर्ग के जिसमें एक डिसैमिनेटर का रोल है. ठीक है, तो जी सर. डिसैमिनेशन मतलब होता है टू स्प्रेड, यस किसी सर. इंफॉर्मेशन को फैलाना. ठीक है, आम करना. जैसे जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैंने अपने तमाम स्टूडेंट तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने, उस इंफॉर्मेशन के देने को और उन तक फैलाने के इस अमल को मैं क्या कहूँगा? डिसैमिनेशन. डिसैमिनेशन. राइट जब सर. हम कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन हैज़ बीन डिसैमिनेटेड, इसका मतलब वो कंसर्न लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे दी गई है और फिर हम यूटिलाइजेशन उसकी करना चाहते हैं. तो लिहाजा in simple sense, if someone asks you what is KM, तो KM is acquiring, creating, sharing, या इसके मुताबिक क्या है? creating, कि create होना, disseminate और फिर उसको utilize करना. This is what like. अच्छा जी, ये ज़रा थोड़ा सा काफ़ी बेहतर चीज़ है. देखिए डाटा प्लस ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जो है वो मिलके इंफॉर्मेशन बनती है. ऐसा इसका मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डाटा. तो डाटा एक रॉ फैक्ट्स होते हैं. जैसे मैं कहूँ जी कि ईच नेम और द रजिस्ट्रेशन गिवन ऑन द अटेंडेंस शीट इज अ डाटा. ठीक है, वहाँ नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, रोल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, वो डाटा है. जब हम उस डाटा को अपने ख़ास मकसद में प्रिपेयर कर लें और उसको वो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ये मिलके फिर वो चीज़ क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन को प्लस जब हम ह्यूमन यूज़ उसको कर ले तो वो क्या बन जाता है? नॉलेज. नॉलेज. तो मेरा ख्याल है यू पीपल शुड नो द डिफरेंस डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज. इसी वजह से हमने हमारी अगली जो जो स्लाइड्स हैं वो इसको चीज़ को करती है.
तो आई थिंक नॉलेज क्या है कि जब डाटा रॉ फैक्ट, जब आप उस डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन, और जब उस इंफॉर्मेशन को आप ह्यूमन पर्पस के लिए यूज़ कर लें। अब जैसे मैं इस आज के लेक्चर को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपको पता चले कि केएम क्या है, और दिस इज व्हाट दैट आई एम यूजिंग इंफॉर्मेशन टू गेट बेनिफिट एंड टू टेल व्हाट इट इज लाइक। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉलेज में। तो लिहाजा जो लेडर बनती है वो ये है कि डाटा, डाटा से ऊपर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से फिर ऊपर नॉलेज। जो है वो नॉलेज, और नॉलेज से ऊपर फिर हमारी क्या है? एक्सपर्टीज बनती है। लेकिन अभी नॉलेज मैनेजमेंट और केएम इज द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखा, हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, सिंथेसाइजिंग, और फिर डिसीजन मेकिंग। यहाँ जब आप पहुँचते हो तो माय डियर, now this can be used for certain decision making purpose point of view. Likewise, just to show you, सर ये लास्ट uh, में जो सिंथेनाइजिंग, ये बता दें क्या है? देखो सिंथेसाइजिंग पता क्या चीज होती है कि जब आप किसी भी चीज को जैसे मैं एक ना ब्लूम टेक्सोनोमी का मैं अक्सर जिक्र करता होता हूँ लोगों के सामने, कि वो कहती है कि पहला लेवल नॉलेज है, नॉलेज से फिर हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से अप्लाइंग की तरफ, अप्लाइंग से एनालिसिस, एनालिसिस से फिर हम जाते हैं इवैल्यूएशन। देखिए, सिंथेसिस पता क्या होता है? जहां आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके आप उसको एज ए होल कोई चीज़ को यूज़ कर सकते हो, तो ये उसका क्या कहलाता है? सिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस से पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और एनालिसिस से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगी चीज़। क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं की, मतलब गाड़ी आपने चलाई नहीं, तो इसका मतलब आपने वो नहीं किया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जाओगे तो देन यू वुड बी एबल टू एनालाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार, कि जी ये ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो मुख्तलिफ पार्ट्स को जब इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करना, इसका मतलब आप एनालिसिस में चले गए। और जब पूरी कार के होल सिस्टम को आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, वो आपका क्या बनेगा बेटा जी? सिंथेसिस। क्लियर? ठीक है, क्लियर सर। अच्छा, अच्छा, आप देखिए, इनफैक्ट जस्ट टू मेक दिस वन, तो देखिए यहाँ पे क्या है? डाटा है, एडिंग मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना जी, रेलेवेंस और पर्पस। यहाँ से फिर हम आगे गए इंफॉर्मेशन में, और जब हम इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपकी जब प्रिपेयर होती है तो इसको फिर आप करते हो किसमें? ट्रांसफॉर्मिंग क्या है? थ्रू पर्सनल एप्लीकेशन, वैल्यू एंड बिलीव्स की बेसिस वो नॉलेज बन जाता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी एथिक्स इसको कहते हैं। अब एथिक्स के नीचे डाटा होगा, हमने उसको इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन को फिर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कि अब एथिकल से नॉलेज कैसे बनाया। मैं कहता हूँ जी कि जो कौमें, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग एथिकल वैल्यूज पे चलते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होती है, और लॉन्ग टर्म टाइप पे बेनिफिट होता है। ये मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब मैंने बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके उसको बता रहा हूँ कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन और एथिकल वैल्यूज बेस्ड मैनेजमेंट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती हैं। ये मैंने इसको नॉलेज बनाया। इसका मतलब मैंने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है थ्रू पर्सनल एप्लीकेशन, वैल्यूज एंड बिलीव्स की बेसिस के ऊपर। और जब नॉलेज बन जाता है फिर आप उसको अपने एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपर्टीज में। एक्सपर्टीज मीन कि वो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है और वो उस काम को आप कर लेते हो। इसका मतलब आप देखें, बेसिकली जो एक्सपर्टीज है ना जी, ये मैं कह सकता हूँ कि ये स्किल है। नॉलेज उसकी अवेयरनेस है। नॉलेज से पहले इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन से पहले डाटा होना चाहिए। ठीक है? अब जैसे कि आप लोग
ACM में कर रहे हैं, तो अगर इफ़ यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन योर कॉस्ट मिक्स और यू कैन प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, और आप प्रोसेस कॉस्टिंग का एक एक चीज़ करके कंपनी को डाटा दे सकते हैं, तो ये आपकी बेसिकली क्या एक्सपर्टीज़ है। और एक्सपर्टीज से पहले नॉलेज होगा, नॉलेज से पहले इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से पहले क्या है, डाटा। इसी तरह हम यहाँ से ऊपर की तरफ, और यही फिर एक्सपर्टीज क्या होती है कि आप उसे इस्तेमाल करते हुए, और फिर ये तो असल में ये एक रेसिप्रोकेशन का एक है, लेकिन आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की है कि ये तीन, तो वो क्या है कि जी डाटा और लाइक। अच्छा आप देखें इसके अंदर, अगर आप थोड़ा देखें तो डाटा में जब क्या है, कलेक्शन और ऑर्गेनाइज जब की चीज़ों को किया जाता है तो ये डाटा है। फिर जब किसी चीज़ को समराइज और एनालाइज किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। और जब अगर उसको आप यूज़ कर लें, सिंथेसाइज कर लें और उसे डिसीजन मेकिंग में ले जाएं, तो वो फिर आपका नॉलेज होता है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक दैट इज द quite like logical models have been given. मेरा ख्याल है क्लियर हो जी, बात होगी जी, प्लीज। जी सर। जी सर। क्वेश्चंस? अजीम ने भी ज्वाइन कर लिया है जी हमें, वेलकम मिस्टर अजीम। अजीम अजीम आप मुझे सुन रहे हैं? चलें, अच्छा जी प्लीज। अब लेडीज जेंटलमैन, अब मेरा ख्याल लेडीज तो शायद ये रमीक्स मेरा ख्याल लगता है लेडी ही हैं, फीमेल ही। अच्छा जी, अभी हमने बात की थी कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ऑब्टेनिंग, स्टोरिंग, शेयरिंग, यूजिंग नॉलेज। तो दिस सिस्टम हैज़ बीन देयर naturally. First of all, knowledge is created, knowledge then would be stored, knowledge would be shared, and knowledge users would be there. ये है जी आपका पूरा केएम सिस्टम, ठीक है। अली इसको दोबारा जरा बोलिए, क्या क्या इसमें चीजें हैं? नॉलेज क्रिएशन है, फिर क्या है? नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज स्टोरेज, नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज यूजेज। एग्जैक्टली। अब नॉलेज क्रिएट होना, स्टोरेज, इसके लिए ज़ाहिरी बात है आजकल हमारी आईटी की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर उसमें आ जाएंगे, जहां हम चीज़ों को, डाटा को डाटा बेस बनाते हैं, रखते हैं, और फिर उनको शेयरिंग का मतलब है कि जिन तक वो चीज़ जानी चाहिए वो वहाँ पहुँचे, डाटा इज़ अवेलेबल, ओपन सिस्टम, जो भी है, जहाँ जिन जिन लोगों को हम समझते हैं, और फिर वो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से ओवरऑल। लिहाजा ये जो पिक है केएम सिस्टम, तो इस मेरा ख्याल है इसको अगर आप ले जेन में रख लें तो नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज स्टोरेज, नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज यूजेस, दैट वुड बी। तो ये बेसिकली एडम मॉडल है, उसने कहा जी कि हम नेचुरली एक्विजिशन, डेवलपमेंट, एक्सेस और फिर मैनेजमेंट, उसकी ये केएम को उसने थोड़ा सा एक और एंगल से देखने की कोशिश की। एक्वायर मीन हम चीज़ों को, डाटा को, एक्विजिशन होती हैं, फिर डेवलप करते हैं, एक्सेस होती है, मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा जी, इनफैक्ट द क्वेश्चन इज वाई के एम। तो बड़े सिंपल सी बातें हैं, और टू शेयर द नॉलेज अ कंपनी क्रिएट्स एक्सपोनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम नॉलेज एज पीपल लर्न फ्रॉम इट। एक तो इसका यह है कि शेयरिंग से हमें बेनिफिट, और फिर हम उसको अल्टीमेट कंपनी को फ़ायदा होता है। YKM, another is to build better sensitivity to brain drain. अब ब्रेन ड्रेन इन अ सेंस लाइक कि हम जो लोग यहाँ इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो फिर बाहर निकल जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपकी कंपनीज के अंदर नॉलेज मैनेजमेंट हो, पोटेंशियल लोग हों,
तो आई एम श्योर लाइक उनको हम बेटर सेंसिटिविटी टू ब्रेन वो कर सकते हैं. To reacting to new business opportunities, my dear, this is highly essential. In other sense, कि आप अगर KM कर रहे हैं knowledge management, तो you are more aware, so there is information system. और उससे क्या होता है कि आप नई से नई जो आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होगा, यू आर सेंसिंग योर एनवायरनमेंट, और देन फ्रॉम सच एनवायरनमेंट यू आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज को फिर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं टू प्रॉफिटेबल पर्पस. ये कोर उसके रीजंस हैं जिस वजह से हम एम के एम करते हैं. Knowledge management may be viewed in terms of people mean how do you increase the ability of an individual in the organization to influence other with their knowledge. You can view people, you can view processes. चूंकि अल्टीमेट हमने नॉलेज को क्रिएट करना है, नॉलेज को स्टोर करना है, नॉलेज को शेयरिंग करनी है और नॉलेज की यूजेस होनी है. तो पीपल के मुतालिक हम देखते हैं कि हाउ डू यू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. चूँकि हम लोगों की एबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं या कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस अदर विद देयर नॉलेज. लाइक इसी तरह प्रोसेसेस को देख सकते हैं. इट्स अप्रोच वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो इसी तरह हम प्रोसेसेस कई हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस पर कोई एक एक्ट होता है और उससे उसकी करंट पोजीशन में तब्दीली आती है, वो जिसकी वजह से तब्दीली आ रही है वो प्रोसेस है. प्रोसेस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जिस तरह हम सिंपल एक एग्जांपल देते हैं कि इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं थ्रू प्रोसेस, और उसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हर स्टेप्स के अंदर उसमें वैल्यू ऐड हो रही होती है. तो एनी हाउ same technology, it needs to be chosen only after all the requirements of the knowledge management initiative have been established. But dear students, technology should have to be taken in a broader perspective. Technology is not just restricted only to machines, techniques, rather everywhere, like wherever some methodology, techniques, ways of doing, जो भी हम उसमें यूज़ करते हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी होती है. अभी जैसा मैं आपसे अगर कहूँ तो अली थोड़ा सा बताएंगे अकाउंटिंग की टेक्नोलॉजीज, मुझे बताइए क्या हैं. एक्सक्यूज मी सर, मैं बताऊं? जी 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 आप बताइए. सर, रेशियो एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये सारा इसमें अकाउंटिंग टेक्निक्स में आता है. बिल्कुल ऐसा ही है. अब असल में एग्जैक्टली चूंकि आपने एक एनालिसिस करना है और वो एनालिसिस जिस तरीके से आप कर रहे हैं तो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं. तो टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज विद द पैसेज ऑफ टाइम्स आर बीइंग चेंज. उनमें एडवांसमेंट भी होती है. वो जो एडवांसमेंट होगी ये उसी तरह ही है जिस तरह मशीन की टेक्नोलॉजी चेंज होती है. आज आप देख रहे हैं हम एक दूसरे को देख नहीं रहे, बट पिछले काफ़ी टाइम से हम क्लासेस पढ़ा रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट, बिकॉज दिस इज़ अ वर्चुअल क्लास एंड दैट्स इज़ अ टेक्नोलॉजी. ठीक है, इवन टेक्नोलॉजी में मेरे नज़दीक ये भी है कि अगर मैं ग्रुप डिस्कशन से, रोल मॉडलिंग से, थ्रू प्लेइंग गेम्स के साथ और केस स्टडीज़ के ज़रिए से मैं आपको नॉलेज देता हूँ, तो ये सारी की सारी उसकी टेक्निक्स हैं और इसको आप क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़. तो माय डियर, जब आप ऑर्थोडॉक्स वे में कॉस्टिंग करते हैं और जब आप एबीसी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं, तो दिस इज़ अ न्यू अप्रोच, एंड दैट न्यू अप्रोच for making the
and calculating the cost naturally is what? This is a technology. Anyhow, so technology must be taken in a broader perspective, please. Keep in mind, हम ज़रा थोड़ा सा उसमें मशीन्स को, टूल्स को ले आते हैं कि जी गाड़ी में बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, तो अकाउंटिंग में भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कॉस्ट में भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, फाइनेंस में भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मार्केटिंग के अंदर भी अब नई नई चीज़ें आ गई हैं, ठीक है ना जी। तो जब हम सेलिंग से नीड बेस्ड सेलिंग पे गए तो वो मार्केटिंग बन गई। तो दैट्स व्हाट आई थिंक that is a technology one, like. So technology, it needs to be chosen only after all the requirement of the knowledge management initiative have been established. Culture है the biggest enabler of successful knowledge driven organization is the establishment of a knowledge focused culture. अजीम, मुझे थोड़ा सा बताएंगे इस सेंटेंस और ये जो लिखा गया है इसका क्या मतलब है? The biggest enabler of successful knowledge driven organization is the establishment of a knowledge focused culture. जी, प्लीज। अजीम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अली, आप बताइए बेटा। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन इज कि जी ये जो उन्होंने कहा है कि द बिगेस्ट इनेबलर ऑफ सक्सेसफुल नॉलेज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नॉलेज फोकस्ड कल्चर। तो ये इसको मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि ये क्या है जो इस दो लाइंस में लिखा हुआ है। सर बेसिकली ये वही लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कितना स्ट्रोंग है कि वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग और नॉलेज को मतलब इनहेंस करता है या मोटिवेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो भी स्टाफ मेंबर है या कोई भी है, या नई टेक्नोलॉजी है या नया नॉलेज है, नया कल्चर है, वो कल्चर वो स्ट्रक्चर इंटरनली इतना स्ट्रोंग हो कि वो उसको प्रिवेल करे नॉलेज मैनेजमेंट को। जी ठीक है। अली आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? सर नहीं है क्लियर सर, समझा दें सर। जी फाहद बेटा आप? सर नहीं बता दें। अच्छा, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं सर। अच्छा, जो रमीक्स दुरानी इज वो आई मीन सर रमीज होंगे सर, रमीज। सर इसकी एग्जांपल दूं? जी जी दीजिए। सर जिस तरह कोई सेमिनार आता है या कोई जिस तरह आईसीएमए की तरफ से सेमिनार आ जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक फीस है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सपोर्टिव है तो वो कहती है फीस हम पे कर देंगे, आप ये सेमिनार अटेंड करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो। तो इस लिहाज से जो नॉलेज बेस्ड या लर्निंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस कल्चर को सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली। असल में वो कहते हैं जी कि नॉलेज मैनेजमेंट जैसे मैं पॉलिसीज बना लूं, लिख लूं, कुछ ये कर लूं, जब आपके कल्चर में नॉलेज मैनेजमेंट आ जाती है ना, जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर फर्ज करें टीचर नॉलेज मैनेजमेंट वो कल्चर को के टीचर्स हैं, तो वो फिर कभी भी रिलक्टेंट नहीं होंगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड दे वुड बी हाईली डेडिकेटेड, ओपन माइंडेड, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। उसकी वजह है कि उस यूनिवर्सिटी का, उस डिपार्ट का, उस कॉलेज का कल्चर है कि उन्होंने बच्चों को फैसिलिटेट करना है। जब एक क्वेश्चन आ गया, अब जैसे अभी हम ये कर लें कि फर्ज करेंगे यू आर फीलिंग सम प्रॉब्लम, तो एक टीचर ये है कि वो एक दफ़ा बता के कहें कि जी बाकी आई डोंट नो, बाकी आप खुद करें, मैं बार बार इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। तो इसका मतलब है कि फिर जिनके बिहाफ के ऊपर हम पढ़ा रहे हैं, फिर इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर के अंदर वीकनेस है, तो नेचुरली फिर नॉलेज मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी। और अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूट इज fully focusing and preferring
and establishing such sort of knowledge management culture. So naturally, all teachers then would be highly dedicated to impart education to their students by any means, mean that through examples, through different clarity, and through different approaches. तो आई थिंक मैं आगे चल के इसी बात को मैंने इस्टेब्लिश करना है, इस वजह से बेसिकली मैंने कल्चर की अहमियत को जो बात करने को थी। अजीम, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ट्रू है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग कल्चर रखती है नॉलेज मैनेजमेंट का, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ जो है वो मतलब है कि उनका कल्चर फिर इस टाइप का होता है। दे ऑलवेज कीप ओपन देयर इंफॉर्मेशन और डेडिकेशंस, और ऐसी वैल्यू सेट करेंगे जिसमें बच्चों को डिस्करेज नहीं किया जाएगा बल्कि इनकरेज किया जाएगा, और टीचर आपको क्रिएटिव बनाए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप लोग वैसे फील करते हैं कि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो इट मेक यू पीपल क्रिएटिव? क्या सर? जो क्लासेस टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, दे मेक यू क्रिएटिव? सर मेजॉरिटी सर डिपेंड करता है क्लास टू क्लास, नहीं, टीचर मैं टू एज टीचर। ये तो फिर इंडिविजुअल बात हुई ना। आईसीएमपी क्या सोचता है? अगर आईसीएमपी की विजन में ये बात आ जाए कि केएम हमने बेस्ड नॉलेज करना है, तो फिर सब के सब टीचर जो है ना वो प्रेफर करेंगे। जाहिर बात है, कल्चर ऐसा है और कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा सर। असल। लेकिन वो नॉलेज बेस के साथ फिर हमारा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उसको मैच करें। वो जो आपने पढ़ा है ना पीछे आगे जो है स्ट्रक्चर, अगला जो आपका पॉइंट है वो फिट टू द ऑर्गेनाइजेशन हो फिर हर चीज। जी जी, अगर ऐसा पेपर ही हमारे ऐसा ही। नॉलेज बेस्ड है, सारी चीजें अगर वो मतलब फिट नहीं है तो फिर इंडिविजुअली बड़ा टफ हो जाएगा कल्चर को डेवलप करना। नहीं 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 नहीं, समझे नहीं। देखो, बात यह है कि आपका वट एवर अल्टीमेट जो गोल्स हैं उसके मुताबिक आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको कल्चर भी बनाना पड़ेगा माय डियर। मसलन अगर वी बिलीव ऑन ग्रुप डिस्कशंस, तो आप मुझे बताइए अजीम, आप किस तरह क्लासेस के अंदर, फिर आपको क्लासेस वैसी बनानी होंगी राउंड शेप में जिसमें टेबल लगे हुए हैं और फिर हर टेबल के साथ 4-4 5-5 चेयर्स हों, जो कि आपने ग्रुप डिस्कशन करवानी है। क्लियर मिस्टर अजीम? मैं आपसे अजीम मैं पूछ रहा हूँ जी, प्लीज। जी सर, कुछ बताएं। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि कल्चर में फिर आपको अपना कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का वैसा बढ़ा, चूंकि यू आर बिलीविंग ऑन ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में फिर आपको स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनाना पड़ेगा अपनी क्लासेस का, रोस्ट्रम्स का और मुख्तलिफ चीज़ों का। ठीक है ना जी? तो मेन चीज़ है कल्चर आपके अंदर उस टाइप का। एनी हाउ, स्ट्रक्चर द बिजनेस प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल that सर वो तो facilitate आपने पीछे भी knowledge पढ़ाया sharing। था कि पहले स्ट्रेटजी बनती है फिर स्ट्रक्चर बनता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये मेरा इशू नहीं है अजीम, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि कल्चर जिस टाइप का आप सेट करना चाहते हैं फिर आपको अपनी हर चीज वैसी करनी पड़ेगी। राइट सर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ भी आपने कल्चर ये सेट किया जी कि टीचर क्लास में चेयर पे ऊपर बैठ के नहीं पढ़ाएगा, तो फिर जाहिर बात है दिस इज द वैल्यू, और यू हैव सेट फिर जितने भी टीचर्स आएंगे वो कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि देयर इज अ कल्चर। इज इट? जी अजीम, प्लीज इस पे कुछ कमेंट करें ना आप। सर आप सही कह रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। चलें, नहीं मैं बात का सुनना चाहता होता हूँ भी। हाँ जी, आपने ओके। अच्छा जी, नाउ दैट देयर इज नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल एक यहाँ पे है। देखें बातें वही हैं, क्रिएट,
capture, refine, store, manage, disseminate knowledge. Create, capture, refine, store, manage, disseminate. और ये जब डिसेमिनेट हो गई, लोगों ने उसे यूज कर लिया, ये नॉलेज बन गया। फिर हम उसी साइकिल में चलें। तो एक चीज क्रिएट होती है, कैप्चरिंग होगी, रिफाइन की जाएगी, स्टोरेज, मैनेज, disseminate. So this is the KM cycle process. Create knowledge through new ways of doing things, identifies and captures new knowledge, places knowledge into context so it is usable. अच्छा जी, इस पे कोई बोलिएगा मुझे, ये places knowledge into context so it is usable, ये क्या चीज है? कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे डाल सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं? सर अली, ये तो फॉर्मेट जी। की बात हो रही है। नहीं, मुझे बात फॉर्मेट नहीं, मैं नहीं समझता, कॉन्टेक्स्ट बताइए क्या है? प्लेसेस नॉलेज इनटू कॉन्टेक्स्ट सो इट इज यूजेबल। आप कोई मुझे एग्जांपल बताएं कि इसको, इससे क्या हम डाइजेस्ट कैसे करें? सर नॉलेज को ऐसे तरीके से डिसेमिनेट करना कि सर वो आगे इजीली यूजेबल हो सके। जैसे कि सर आपको नॉलेज है सर, नॉलेज मैनेजमेंट की, आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें डिसेमिनेट कर रहे हैं सर। नहीं और माय हम डियर, मुझे बताइए digest भी कर रहे हैं। कि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने किसी न किसी लेवल पे? सर मैंने पढ़ा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। चलें, बड़ी बात है और आई रियली अप्रिशिएट। मैं अगर कहूं कि जी हमारा कल्चर हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, तो इससे क्या मतलब है? सर ये मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, अली? नहीं है सर यार। एनीवन अदर प्लीज? फाहद? फाहद, आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा जी, इसको अजीम ज़रा नोट करें आप, और आप लोग ये मैं कल बात करूंगा आप लोगों से इस पे। ठीक है सर। और Noted, लिखना sir. क्या है? लिखना क्या है? हाई कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट। और दूसरी बात है कि कॉन्टेक्स्ट हम किसको कहते हैं। हम देखा अक्सर कह रहे होते हैं कि सर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। सर ये ठीक भी है? तो होता है कॉन्टेक्स्ट बुक, पंजाब कॉन्टेक्स्ट बुक। नहीं 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 बेटा, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं अक्सर, अली को पता है, मैं क्लास में बच्चों को ये कह रहा होता हूँ कि ओ यस यू आर जीनियस पीपल। अली, क्या क्या सूरत हाल उस वक्त होती है लोगों की? बच्चे शर्मा रहे होते हैं ना? ऐसी है सर। अच्छा, इसका मतलब हालांकि मैंने, मेरे अल्फाज तो कह रहे हैं कि आप जीनियस हैं। ठीक लेकिन है, सर स्टाइल कुछ और कह रहा है सर, मतलब कुछ और है। दैट्स व्हाट। कॉन्टेक्स्ट अब इसको कॉन्टेक्स्ट। इस रेफरेंस में आप लोगों ने कल पढ़ के आना है। ठीक है? ठीक है सर। और दूसरी अजीम, आपने पढ़ना है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। ओके सर। चलें, ओके। फिर स्टोर नॉलेज इन रिपोजिटरी और रिव्यूज फॉर एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस, और मेक नॉलेज अवेलेबल टू एट ऑल टाइम्स टू एनीवन। तो ये माय डियर, ये हमारा क्या बन गया? साइकिल है। इनफैक्ट प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ये बातें भी उसी हवाले से ही ज़रा, चूँकि मैंने मॉडल को ज़रा ऐड किए हैं ताकि ज़रा चीज़ों को स्ट्राइक हो और बार बार आप लोग जो है ना जी वो चीज़ हो। ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिक प्रोसेस, डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिंग नॉलेज, सो डिप्लॉइंग नॉलेज, और क्रिएट यूनिक वैल्यू हम करते हैं अल्टीमेट, बिकॉज थ्रू यूजिंग knowledge some sort of unique value would be created. My dear, these benefits you may enjoy through the KM. Improve quality of service to user, नेचुरली बात है कि इससे किसी भी लेवल पे, विद इन कंपनी, आउटसाइड द कंपनी, हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव होती है। मैं फ़र्ज़ करें, आप अक्सर कभी नोट किया होगा कि टेलीफोन आप अगर किसी जगह करें
तो फ़र्ज़ करें कि अगर आप कभी ये डेवो के और फैसल मूवर को फ़ोन करके देख लें, तो बाज़ का अननेसेसरी बड़ा टाइम लगता है वहाँ पे, यस सर। ठीक है ना जी? तो नेचुरली व्हाट दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ द डेवो और फैसल मूवर। अच्छा, फिर वो बंदा जब बोल रहा होता है, तो वो बोलते हुए भी उसने उसकी स्मार्टनेस इतनी नहीं होती कि मैंने बात कैसे करनी है, क्या करनी है और मेरा लहज़ा कैसा होगा, ठीक है ना जी? अच्छा, anyhow, if knowledge management has been done, so my dear, on the basis of this one, if he or she knows कि जी efficiency और effectiveness कैसे लाई जा सकती है, तो naturally she or he would be using a more better use of telephone or mobile because time is precious one. So that's why I think आप बड़ी एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देंगे और कम से कम टाइम में आप एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जी इससे बेनिफिट ये है कि हमारी जो सर्विसेज जो यूज़र्स हैं वो बेहतर हो सकती हैं। इसका वन ऑफ द मेजर बेनिफिट इज दिस वन। improve user satisfaction naturally, increase adoption of self service। इसमें चूंकि सेल्फ सर्विस का मतलब है कि आप को जब नॉलेज हो जाए ना जी या आप अब है तो आप वो काम खुद करने के लिए तैयार होते हैं कि जी मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, आई जस्ट डूइंग, क्योंकि आपको आता है। और मेरा ख्याल जो चीज़ आपको आती नहीं होगी वो अवॉइड करेंगे आप और वो डिले करेंगे। जैसे अभी आप मुझे पूछेंगे और मुझे चीज़ नहीं आती तो मैं कहूँगा कि हाँ हाँ वो भी ये रेलिवेंट नहीं है जी, इसको ऐसा कर लें या हम कल देखेंगे या परसों देखेंगे। और कल भी मैं कहूँ कि हाँ नहीं ये टॉपिक पहले ये पढ़ लें फिर देख, असल में पीछे स्टोरी क्या है कि आई डोंट हैव द ग्रिप। दैट्स व्हाई आई थिंक दी के हमें अवेयरनेस लाता है और इससे हम अडॉप्शन ऑफ सेल्फ सर्विस की तरफ जाते हैं जिससे अल्टीमेट परफॉर्मेंस बेहतर होती है। हायर फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन रेट्स देखा, वो जो फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन है कि पहली ही कॉल पे वो आपकी नेचुरली जस्ट आई हैव कॉन्टेक्टेड तो अली हैज़ रिस्पॉन्डेड कि यस सर आई हैव आस्क्ड मिस्टर अजीम। तो अजीम इफ इज गिविंग द राइट एग्जाम्पल बजाय कि हम इधर उधर की बातें करें या आप मुझे पूछें मैं इधर उधर की बातें करूं, तो दिस इज जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई के एम हमें सेंसिटाइज करता है। और ये चीज़ reduce time to diagnose incident and problems, reduction in training time and cost, faster adoption of new or change services, so increase responsiveness to changing business demands। बेसिक बातें हैं। और ये जो ये बेसिकली थोड़ी सी स्लाइड मेरा ख्याल है इसके साथ अटैच होनी चाहिए थी, ये इसके साथ, ठीक है ना जी, जो हम पढ़ रहे थे इसका थोड़ा सा सीक्वेंस। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो हमने मैनेजिंग नॉलेज मैनेजमेंट, तो इसमें मैनेजमेंट एंड लीडरशिप केएम रिक्वायर कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप at all level like knowledge manager, knowledge brokers, and so on. Technology, the system, tool, technology that fit the organization requirement, properly designed and implemented. So policies, the long-term support to implement and sustain initiatives that involve virtually all organization functions, so which may be costly to implement both from the perspective of time and money, and which often do not have a directly visible return on investments. My dear, uh, managing knowledge management strategy, the objective is to manage, share, create relevant knowledge assets that will help meet tactical and strategic requirements। अब यहाँ पे देखें स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो आप स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी की जो एग्जीक्यूशन हमने कैसे करनी है, ठीक है। मैंने पढ़ाना आप लोगों को कोर्स है, ये स्ट्रेटेजिक है, लेकिन अब आप लोग रिलेक्टेंट है, लेकिन आप लोगों को मैंने इन्वॉल्व कैसे करना है, ये मेरा टैक्टिक्स होगा। The tactics is the execution. Same organization culture. The organization culture influences the way people interact. The context. अब ये दोबारा आ गया लफ्ज अजीम, आप लोग जो कल आप पढ़ के आएंगे, the context within which knowledge is created.
the resistance they will have towards certain changes, and ultimately the way they share or the way they do not share knowledge, or organization processes the right processes, environments, and systems that enable KM to be implemented in organization. My dear, this is the crux one. वो जो मैंने कल्चर 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 की बार बार मैं बात कर रहा था, ये है वो चीजें. देखिए, डू यू नो अबाउट एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड इम्प्लिसिट नॉलेज? सर जो चीज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो एक्सप्लिसिट है और जो नॉन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो इम्प्लिसिट है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. और आप क्या चाहोगे कि नॉलेज मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो अगर आप लोगों को चाहते हैं कि सब लोगों के हमारे नॉलेज जो कंपनी का है मीन वो सबको पता चल जाए, तो अगेन आपको क्या करना होगा? यू नीड टू क्रिएट ए कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. और कल्चर की जो सबसे बड़े बेनिफिट क्या है, कल्चर को डिफाइन अजीम जरा करें आप, कैसे कैसे करें? सर दोबारा समझिए और डिस्ट्रैक्ट हुई आवाज. माय क्वेश्चन इज कि अजीम कल्चर को किस तरह डिफाइन कर सकेंगे? सर कल्चर बेसिकली बिलीव नॉर्म और इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये सारी चीजें इस कल्चर में आती हैं. और इसी बस में हम सिर्फ बिलीव्स, आगे पूरी डेफिनेशन चाहिए. सर बिलीव्स नॉर्म्स कस्टम्स बस प्रैक्टिसेस ठीक है. और चीजें कल्चर बस में आती हैं. अली आप बोलिएगा प्लीज. सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. Question is simply, I just would like to know what is the definition of culture. Sir, someone's perspectives, beliefs. Sir, this could be called culture. Someone, जब आप someone कहते हैं ना, तो वो कोई एक होता है, और एक का कल्चर तो वो तो कल्चर बना ही ना, माय डियर. अली गिलानी मुल्तान कैंपस में जाके टाइम पे क्लास ले लेते हैं, तो ये तो कल्चर ना हुआ ना. सर हम इसको सर अगर इंडस्ट्री की बात करें सर, इंडस्ट्री के कल्चर्स को हम सर इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं सर. तो बेटा जी आप ये कहेंगे कि कल्चर इज दी, इसमें ना सबसे डोमिनेंट वर्ड शेयर्ड का है. आप सुनिए, शेयर्ड मीनिंग्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, रिचुअल्स which are widely accepted and practiced by the member of organization. Azim, please. जी सर. ठीक है ना, widely accepted and practiced. क्योंकि जब तक आप मेंटली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, माय डियर, वो कल्चर नहीं, स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं बनता. इसलिए वजह से मैंने अली आपको कहा था कि you are going on time, but if your teacher is not coming mostly in your campus on time, yes sir, तो आप क्या कहोगे कि हमारा कल्चर जी बड़ा कमजोर सा है, टीचर टाइम पे नहीं आते. वजह क्या थी कि they have not set a values norms to come on time, they are not showing dedication. तो आप कहते नहीं हमारा ये कल्चर इस हवाले से कमजोर है. ठीक है, राइट सर. तो कल्चर का ताल्लुक एक्सेप्टेंस से और फिर उसको वो करने से है, प्रैक्टिस करने से. क्योंकि जब एवरी मेंबर इज प्रैक्टिसिंग, तो देन दिस बिकम अ स्ट्रॉन्ग कल्चर. तो ये समवन ना कहा करें, क्योंकि समवन कल्चर नहीं बनता. द होल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू फॉलो. क्लियर? यस सर. अच्छा, अब देखिए बात यह है कि इसको थोड़ा सा हम अगर देखें तो दिस इज व्हाट दैट इज एक्सप्लिसिट, जो अभी अजीम बात कर रहे थे, और आपका
implicit explicit सर mean इसकी एग्जांपल हो सकती है, ऐसे मैं दूं अगर, जिस तरह एक कंपनी के अंदर MIS सॉफ्टवेयर का मैनेजर है और उसने अपने सॉफ्टवेयर का एक डेमो बनाया हुआ है ताकि कोई भी नए एम्प्लॉय आए तो वो उसको डेमो देके सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग या नॉलेज ले। अब वो जब प्रेजेंटेशन दे तो डेमो के जरिए दे दे, एक्सप्लिसिट नॉलेज है, और अब वो अपने जहन से अपने नॉलेज के हिसाब से थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करे तो ये इम्प्लिसिट नॉलेज है। नहीं, देखिए देखिए असल में बात यह है, मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स के कुछ रूल्स प्रोसीजर लिख के दे दिए कि ये दिस इज द पॉलिसी दैट आई हैव टू फॉलो। हाँ सर, आपकी भी एग्जांपल हो सकती है, आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज और कुछ आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं इम्प्लिसिट नॉलेज। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा जल्दी कर रहे हो जी, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं आप। बात यह है कि एक्सप्लिसिट का मतलब ही यह है कि जो ओवर्ट होता है, जो बज़ाहिर जो कोडेड चीज़ है, पॉलिसी, प्लान, प्रोसीजर लिखा हुआ, SOP, ठीक है, जो कंपनीज का या किसी यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस पब्लिश्ड है, उसमें लिखा हुआ ये रूल्स हैं, ये आपने अप्लाई ऐसे करना है, ये करना है, ये चीज़ ऐसे, हमारे टीचर ऐसे आगे पढ़ाते हैं, ये तो एक्सप्लिसिट है। हम पंक्चुअलिटी को फॉलो करते हैं, ये होता है। बात यह है कि इम्प्लिसिट वो चीज़ है कि जो अनकोडेड हो और लोग उसको कर रहे हो, इसका मतलब वो आपके ब्रेन में, माइंड्स में एम्बेडेड चीज़ें हैं। देखा, हम कल्चरली मतलब ऑटोमेटिकली हम हैंडशेक करेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। कल्चरली हम कहते हैं कि जी अगर हम कोई साथ हमारे बैठे हों तो जी आइए जी प्लीज़, ठीक है, वो कहता है जी आगे से नहीं जी आप बिस्मिल्लाह करें जी प्लीज़। ये चूंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस दैट एवरीवन फॉलो, ठीक है। अच्छा, तो जो इम्प्लिसिट चीज़ें होती हैं ना, वो लोग, इसीलिए मैंने लफ्ज़ शेयर्ड इस्तेमाल किया था। शेयर्ड का मतलब है कि वो लिखी हुई नहीं है लेकिन पीपल अंडरस्टैंड, ओके, लिखी हुई नहीं है बट पीपल अंडरस्टैंड, राइट सर। वो टेसिट है। और ये आप लोगों ने जरा, आप लोगों की मैं वैल्यूडेशन ये करना चाहता हूं, इम्प्लिसिट सुना होगा लेकिन ये इसको बोला करें प्लीज, टेसिट, हिडन, अनकोडेड, नॉट डिस्क्रिप्टिव। लेकिन लोग समझते हैं, मतलब मेरे क्लास में या हमारे कैंपस के अंदर चीजें लिखी हुई कोई नहीं है लेकिन पीपल अंडरस्टैंड और दे आर वेरी कोहेसिव या वेरी सपोर्टिव, ठीक है, दे आर डेडिकेटेड, लेकिन पॉलिसी में किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है वो ये है कल्चरली एम्बेडेड। ये लफ्ज एम्बेडेड, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है प्लीज। इसका मतलब है कि आपकी जड़ों में है वो चीज, योर ब्रेन, योर माइंड, योर मसल्स, वो जानते हैं लेकिन लिखा किसी जगह भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे वो ये कहना चाहते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट जब हमने करनी है तो ये है वो कि जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होगा वो है फॉर्मल और कोडेड, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स, पॉलिसी, मैनुअल्स, वाइट पेपर्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, डेटाबेसेस, बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स, लाइब्रेरी। ये तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, हमें पता चल गया जी कंपनी की इंटेंशंस क्या है, मिशन पढ़ लिया, विजन पढ़ लिया, गोल लिखे हुए हैं। और इसीलिए वो जो SM के अंदर है ना जी, एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपकी वो जो इंटीमेशन, जो इमिटेशन है, उसको रोकना है तो आप, चूंकि ये नॉलेज तो कोई भी कॉपी कर सकता है लेकिन इसको कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ये काम होता कैसे है। तो लिहाजा कंपैरेटिव एडवांटेज भी गेन और रखने के लिए कोशिश करें कि आपका नॉलेज कौन सा होना चाहिए। ये अजीम, क्लियर? जी सर। This is what informal and uncoded values, perspectives, and culture
नॉलेज इन हेड्स, देखा, नॉलेज इन हेड्स, मतलब हमारी, मेरी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लिखा हमने किसी जगह भी नहीं है। ठीक है, हमने नहीं किसी जगह भी लिखा था कि जी हम जी पंक्चुअल रहेंगे, लेकिन वंस टाइम स्टार्टेड टीचर इज ऑन टाइम, स्टूडेंट्स आर ऑन टाइम, लिखा किसी जगह भी नहीं है। इसका मतलब ये चीजें हमारे हेड्स में हैं। जो चीज अनकोडेड है वो टेसेट है। ठीक है, तो नॉलेज मैनेजमेंट के लिए वो चाहते हैं कि जी, मतलब अभी अभी हम एक मॉडल मैंने अभी आप लोगों को करवाना है, तो ये चीजें मतलब है कि जो आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, अगर वो टेसेट नॉलेज को समझते हैं, तो इसका मतलब उनकी सोशलाइजेशन है, और दे अंडरस्टैंड ऑल वैल्यूज। क्योंकि जो वैल्यूज मैं जानता हूं वो आपको भी पता है, लेकिन वो लिखी हुई नहीं है वैसे। चूंकि वो लिखी हुई नहीं है, लेकिन वो टेस्टेड है। तो दिस इज व्हाट लाइक मेमोरीज ऑफ स्टाफ, सप्लायर्स एंड वेंडर्स। अब मेमोरीज हैं, बट आई थिंक वी हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड वन। हम या बैठ के याद करते हैं कि यार क्या बात है उनकी और वो इस तरह होते हैं, तो हमें मतलब है कि जी हम ऐसे काम करते हैं और काम करना है जी वैसे, लेकिन दैट इज नॉट अ मेंशन्स लाइक एनीवेयर एल्स। अच्छा, अब देखिए प्लीज फीचर्स जरा देखें। एक्सप्लिसिट नॉलेज टेंजिबल होगा, जबकि ये क्या है, इंटेंजिबल। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट इज इन डॉक्यूमेंट्स आर डेटाबेसेस। इधर क्या है, मेंटल ऑब्जेक्ट्स, इट्स इन द पीपल हेड्स। ये कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स मीनिंग। अब अगेन माय डियर, ये कल के लिए इसको रख लीजिएगा सामने, और इसको दोबारा मुझे बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी चूंकि मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा ना, चूंकि आप लोगों ने जरा पढ़ के आना है। सर हम यूं भी कह सकते हैं जो टेसेट नॉलेज होगा सर वो हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे होगा सर। बेटा जी, वो भी वही बात आपकी मेमोरीज में है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। और एक्सपीरियंस का मतलब आपने लिखा तो नहीं, बट यू नो, यस सर। पूरी टीम का एक्सपीरियंस है, दे नो, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, टेस्टेड है। ठीक है सर। अब देखो ना, बात यह है कि जो टीम्स खेलती है ना फुटबॉल, उनका जितना कोऑर्डिनेशन, वो बेसिकली उनके कल्चर के अंदर, उनके माइंड में चीजें कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन है कि मैं ऐसे करूंगा तो ये ऐसा, उसका मतलब है। दूसरी टीम अगर वो पता चल जाए कि मैं लेफ्ट से अगर आऊं तो ऐसा होगा, और राइट से अगर आऊं तो ऐसा मैं करूंगा, तो वो तो दूसरों को पता चल जाएगा। तो उनकी राइट सर। अपनी प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एम्बेडेड है। ओके, यस सर। तो ये काइंडली इसको कल इसको ये आप अभी मैंने इसको बताना कि ये कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स मीनिंग है। ये चूंकि कल मैंने इसका जिक्र हमने करना है, आप लोगों से भी पूछना है, और पहले आप लोग पढ़ लें, तो देन विल बी गोइंग टू। अच्छा जी, ये इजीली शेयर्ड है, ये शेयरिंग इन्वॉल्व लर्निंग। क्योंकि ये आपने तो पॉलिसी पढ़ दी, पता चल गया, लेकिन ये लर्निंग जब तक लर्न नहीं करेंगे उस वक्त तक शेयर नहीं होगा। रिप्रोड्यूसेबल है, ये नॉट आइडेंटिकली रेप्लिकेटेड। दिस इज द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। और इसी को मज़ीद थोड़ा सा ये किया गया है कि देखें, ये अप्रोच टाइप में सेंस, ऑर्गेनाइज, सोशलाइज, इंटरनलाइज है, और ये ऑब्जर्व, गैदर, हाइपोथेसाइज, कॉन्टेक्चुअलाइज, कैटेगराइज, मैप। लेकिन असल में ये जो चीज़ है, जो असल नॉलेज क्रिएशन सेंसिंग, ठीक है, ह्यूमन फोकस क्रिएट सेंस, नॉलेज ऑर्गेनाइज हम करते हैं, कैप्चरिंग होती है, और फिर नॉलेज शेयरिंग एंड डिसैमिनेशंस की। लेकिन अब इस पे आप ज़रा आइएगा, ये है वो असल चीज़। चार चीज़ें, ये एक मॉडल है, और इसमें ये मॉडल, ये नौनका नौनका का मॉडल है, ये उसने बेसिकली दिया है। और नॉलेज स्पाइरल का नाम है ऑफ SECI, दैट इज मीन SECI मॉडल theorized बाय नौनका gave emphasis on the following। वो कहता है जी कि
socialization, externalization, combination, internalization. चूँकि हमने क्या करना है, नॉलेज, तो लोगों में नॉलेज मैनेजमेंट करने के लिए हमें सोशलाइज, एक्सटर्नलाइज, कम्बिनेशन, इंटरनलाइज, ठीक है। पहले ज़रा आप लोग इसको पढ़ लें, फिर हम ज़रा देखिए सोशलाइजेशन क्या होती है। इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ नॉलेज बिटवीन इंडिविजुअल्स। देखें, जब हम फर्ज करें हम टीम के 10 लोग हैं, हमारे इन 10 लोगों में अगर हम वो नॉलेज अगर शेयरिंग सब में हो जाती है, तो इसको हम सब जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसका मतलब हमारी क्या चीज़ हो गई, सोशलाइजेशन। कि जब टीम के सब लोग इंडिविजुअल्स उस चीज़ को जानना शुरू हो गए, तो वी हैव बीन सोशलाइज्ड, मीन कि हमने उन लोगों को जो नए भी आए थे वो भी सीख गए हैं, सोशलाइजेशन हो गई और वो लर्न कर गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक्सटर्नलाइजेशन क्या है। दिस रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन ऑफ टेसिड नॉलेज एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू comprehensibly form that can be understood by others. तो जब आपकी कुछ चीज़ों को बाहर वाले दूसरे लोग एक्सटर्नल समझना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नॉलेज दूसरों तक पहुंच गया। जैसे अगर फर्ज करें कि कंपनी की जो थिंकिंग है वो कस्टमर को भी पता चल गई, सप्लायर भी अंडरस्टैंड करता है, तो योर नॉलेज नाउ इज अंडरस्टैंडिंग बाय द सप्लायर, बाय द कस्टमर्स, तो एक्सटर्नलाइजेशन हो गई। कॉम्बिनेशन क्या है, इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज इनटू मोर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्सप्लिसिट, ठीक है। और दिस इज फिटिंग द एलिमेंट ऑफ नॉलेज टुगेदर। तो जब हम एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम मजीद ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों में, डिटेल में, इन रिच एक्सप्लिसिट नॉलेज में कन्वर्ट कर दें, ये कॉम्बिनेशन है। और इंटरनलाइजेशन क्या है कि वेयर न्यूली क्रिएटेड नॉलेज इज कन्वर्टेड फ्रॉम एक्सप्लिसिट नॉलेज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टेसिड नॉलेज। देखिए बाहर कुछ चेंजेस आई हैं, नई चेंजेस, ज़ाहिर बात है बाहर से अंदर की तरफ आ रही चीज़ें, और जब हमारे लोग उसको सीख जाएंगे जो बाहर चेंजेस आई हैं उसको, तो इसका मतलब बाहर का नॉलेज हमारे अंदर आ गया। इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनलाइजेशन। जो अंदर से बाहर जाएगी वो एक्सटर्नलाइजेशन है, और जो आपस में लोग सीखेंगे वो सोशलाइजेशन है। यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ से कितनी चीज़ें निकली, 4 चीज़ें। नॉनिका का मॉडल जो है वो कहता है जी कि SCCI मीन सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन और इंटरनलाइजेशन। अब ज़रा इसी चीज़ को थोड़ा सा देखें, और फिर मैंने एक दो इसी के ऊपर मॉडल दिखाने हैं। देखिए सोशलाइजेशन में टेसिड टू टेसिड है, ये देखिए ज़रा दोबारा। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल आपस में उनके दरमियान शेयरिंग ऑफ नॉलेज होती है, तो ये क्या है, टेसिड टू टेसिड। तो टेसिड टू टेसिड में का मतलब है कि आपके अपने लोग इंडिविजुअल उन चीज़ों को जानना शुरू हो गए, और इसको हम क्या नाम देते हैं, सोशलाइजेशन। हमारी कंपनी के अंदर 50 लोग हैं, 50 के 50 लोग उस कल्चर को अब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जो नए लोग आए हैं वो भी अब्जॉर्ब हो गए हैं, दे अंडरस्टैंड वैल्यूज, दे अंडरस्टैंड सम सॉर्ट ऑफ द नॉर्म्स जो भी हमारी हैं, तो इसका मतलब उनकी सोशलाइजेशन हो गई। एक्सटर्नलाइजेशन क्या है, टेसिड टू एक्सप्लिसिट। टेसिड टू एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आपकी जो नॉलेज है उसको बाहर वाले, सॉरी जो आपका, हाँ जी, जो टेसिड है ना वो अब एक्सप्लिसिट सेंस में आना शुरू हो गया। तो अंदर से जब बाहर चीज आती है वो क्या, एक्सटर्नलाइजेशन है। और कॉम्बिनेशन में क्या है, हम एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट मीन के एक नॉलेज था उसको मजीद डिटेल में हमने देखने की। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि जी जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हमने कहा ना जी कि
नॉलेज। तो अच्छा जी, मैंने कहा जी कितनी स्टेजेस हैं, तो पहली एक स्लाइड मैंने दिखाई थी, मैंने कहा जी डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। फिर हमने एक अगली स्लाइड दिखाई, उसमें हमने कहा जी नॉलेज से फिर एक ऊपर चीज है और वो एक्सपर्टीज है। तो तीनों बातें, पहला डाटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और फिर हमने उसको मजीद कॉम्प्लेक्स किया और एक और उसमें थ्योरी ऐड कर दी या कुछ किया। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट है, ये कॉम्बिनेशन है। और इंटरनलाइजेशन में क्या है कि हम जो एक्सप्लिसिट चीजों को जब हम अंडरस्टैंड, चूंकि बाहर से जो कुछ हमने पढ़ा, एक नई थ्योरी आई है, उसको पढ़ा, अब उसको हम अंडरस्टैंड करके अपने ऊपर तारी कर लिया है, तो इसका मतलब बाहर वाली जो चीज एक्सप्लिसिट थी उसको हम समझ गए, तो ये क्या है, दैट इज एक्सप्लिसिट टू इंटरनलाइज मीन टेसिट, और दिस इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा देखना, ये नॉनिका का है, द नॉलेज स्पाइरल मॉडल। ये देखिएगा, अभी जो बात हुई है कि इसमें सोशलाइजेशन में क्या है, टेसिट टेसिट, कि आपके जब इंडिविजुअल सब वो चीजें, उन वैल्यूज को सीख जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। जब टेसिट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सप्लिसिट, तो ये एक्सटर्नलाइजेशन हो जाती है। जब एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे दो थ्योरीज को मिला के हमने कोई नई चीज बनाई, जैसे ये लिस्ट सिस्टमेटाइज किया, क्लासिफाई कर दिया सॉरी। और माय डियर, जब हमने एक्सप्लिसिट को हमने टेसिट में कन्वर्ट किया, तो ये इंटरनलाइजेशन है। इसकी एक यही चीज ज्यादा बड़े कंप्रीहेंसिव तरीके से बताती है। सॉरी, ये देखिए बच्चों, सोशलाइजेशन में क्या है, एक सर्कल है, ये दो लोग हैं, ये, और दोनों लोग अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए। टेसिट नॉलेज, टेसिट नॉलेज, जो नॉलेज इसके माइंड में था, इसके माइंड में भी, जो वैल्यू ये समझता है, इसको भी समझ आ गई। क्या बन गया, सोशलाइजेशन। ये एरो हमें, अब हम एक्सटर्नलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। एक्सटर्नलाइजेशन में हम क्या है कि ये सर्कल हमारा जो है, इसमें ये बाहर की दुनिया है, ये ठीक है। तो हम क्या है कि हम इसके अलावा जो जो सोशल टेसिट है, वो अब एक्सप्लिसिट में हम कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमारी जो अंदर की थिंकिंग है, वो बाहर निकलना शुरू हुई है, और वो जब आप उनको किसी लेवल के ऊपर लिख लेते हैं, करते हैं, तो इसका मतलब आपका क्या है, एक्सटर्नलाइजेशन। और यही चीज जब यहाँ आती कॉम्बिनेशन में, तो आपने क्या किया कि जी 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 मीन मुख्तलिफ चीज़ों को लेके उसको कंबाइन करके आपने एक चीज़ बना दी। तो यहाँ देखें, आपका नॉलेज क्या है, दैट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज आपका है, ठीक है, और यहाँ एक्सप्लिसिट नॉलेज आपका है। जब आप इंटरनलाइजेशन की तरफ आते हैं, तो यहाँ से फिर आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज आपका क्या बनता है, दैट इज मीन यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि वो जो नए रिपोर्टिंग सिस्टम एक चेंज आई है, या कोई कवानीन में तब्दीली आई, टैक्स लॉ, और उसको अब आपने समझ लिया है, और अब आपकी वो थिंकिंग में चीज़ आ गई, मेमोरीज में आ गई, यू हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, अब आपको पॉलिसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाट दिस इज इंटरनलाइजेशन। तो माय डियर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मॉडल हैव बीन गिवन। तो मेरा ख्याल है कि नॉलेज मैनेजमेंट के लिए ये नॉनिका का ये मॉडल और इसके ये वाले पैरामीटर, सोशलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन, कॉम्बिनेशन एंड सॉरी एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन और और इसमें ये वाली जो बात है, ये आपको सपोर्ट करेगी। सोशलाइजेशन में टेसिट टू टेसिट, एक्सटर्नलाइजेशन में टेसिट टू एक्सप्लिसिट, कॉम्बिनेशन में हम एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, और इंटरनलाइजेशन में हम एक्सप्लिसिट टू टेसिट की तरफ जाते हैं। फिर ये मॉडल बी आपका वही है कि यहाँ ये सोशलाइजेशन आप क्या थे कि इन टेसिट जब आपकी आपस में हो गई, तो ये सोशलाइजेशन। जब टेसिट
एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हुआ, एक्सटर्नलाइजेशन, जब एक्सटर्नल एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट हुआ तो कॉम्बिनेशन, और जब आप यहाँ से इधर की तरफ मूव करते हैं तो असल में ये घूमती इस तरीके के साथ चीज़ है। इसका मतलब है कि लॉजिक ये है कि हम सोशलाइजेशन से एक्सटर्नल, एक्सटर्नलाइजेशन से कॉम्बिनेशन, और फिर कॉम्बिनेशन से मीन हम इंटरनलाइजेशन, और जब हमारी इंटरनलाइजेशन हो जाती है तो इन अदर सेंस हम सब वही जानते हैं जो कंपनी में का नॉलेज हर बंदे के पास है, और जब हर बंदे के पास इंटरनलाइजेशन हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि एवरीवन इज नोइंग कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट अबाउट दिस वन, राइट? क्लियर? यस सर। ठीक है जी। ये इनकी ये जो दो तीन चीजें हैं, ये बातें मैंने ऐड अप इस वजह से, ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है। इसका एक ये उसने उसका ओरिजिनल मॉडल है जिसमें उसने बताने की कोशिश की है सोशल एक्सटर्नल लाइक। तो दिस इज अबाउट दिस नॉलेज मैनेजमेंट। आई होप सो माय डियर ये जो चीज़ें हैं आज की, आपको दिस मे गिव यू the whole story about the KM knowledge management। ये क्रक्स मैंने बता दिया है। इसमें हमें पता चल गया कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, उसके बेनिफिट्स, पर्टिकुलरली हमें ये पता चल गया है कि जी ये डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज में फ़र्क क्या है। ये दो हमने स्लाइड्स एडअप की थी जिसमें हमें पता चला जी कि डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, फिर हमने एक और इसको इम्प्रूव किया। हमने कहा जी डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है एक्सपर्टीज़ में, और ये एक प्रोसेस की हमने बात की है। हम ऑब्टेन करते हैं, स्टोर करते हैं, शेयरिंग होती है, यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें, और जो आखिर में वो जो मॉडल्स हैं वो नॉनिका का मॉडल, मेरा ख्याल है इसको वैसे भी ग्रैप्स करें। और आज की जो वैल्यूडेशन थी वो ये थी कि हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज और टेसिट नॉलेज या इम्प्लिसिट नॉलेज। तो हम टेसिट और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के कॉम्बिनेशन से हम की वो जो चार एरियाज हैं जो नॉनिका ने बताए हैं उसको वी गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, ये मैंने लास्ट टाइम मुझे लगता है कि ये स्लाइड मैंने आप लोगों को करवा दी थी आई थिंक, क्यों जी? ये करवाई है मेरा ख्याल है। एक्सक्यूज मी मिस्टर अजीम, अजीम आप बता सकते हैं? जी सर। ये मेरा ख्याल ये करवाई हुई है मैंने। यस आई रिमेम्बर। अच्छा बच्चों, आज तो हमारा केएम हो गया, और कोई क्वेश्चंस? लास्ट वेडनेसडे को मैंने क्लास नहीं ली थी, तो वो आपने क्या टॉपिक पढ़ाया था वेडनेसडे वाले दिन? वेडनेसडे को इत्तेफाक है कि आई हैव नॉट टेकन क्लास। ओके सर वो मैंने पूछा था, ई मार्केटिंग हमारे बुक में टॉपिक है, वो मार्केटिंग के अंदर ही है, वो हमने पढ़ना है या नहीं? ई मार्केटिंग बेटा वो पढ़ लें बस। मेरा ख्याल है, देखें बात यह है कि अब ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, ई एचआर जहां, बट टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड कर लें। अब आपकी क्लास कौन सी हो रही है? ई क्लास हो रही है ना? नहीं सर, वो तो मैं पढ़ लूंगा सर, वैसे ही पूछ रहा था आपसे। जी जी नहीं, आप उसको देखो ना, वो देखें, हाँ पढ़े देखें, मतलब ई मार्केटिंग में वो जो हमारी है उसमें जो असल में तो टेक्नोलॉजी यूजर्स के साथ उनकी चीज़ें हैं। जैसे आप जब आप ई मार्केटिंग करोगे तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेसमेंट में तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ है तो नेचुरली बात आई थिंक आपका वो ई मार्केटिंग हो जाएगी। जी राइट सर। जी कोई कोई क्वेश्चन करें, कोई इंटेलेक्चुअल? सर आपने एक दफा पीछे पढ़ाया था, पहले हम नॉलेज लेते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, कन्वर्ट ऑटोमेटिकली नहीं होता।
मतलब वो मैंने ब्लूम टेक्सोनॉमी अजीम करवाई थी, ब्लूम टेक्सोनॉमी ये है। आपने साइंस की डेफिनेशन में भी आपने ये नॉलेज के बारे में बताया था। हाँ नहीं वो देखें, ब्लूम टेक्सोनॉमी के 6 लेयर्स हैं। वो कहते हैं जी कि फर्स्ट लेयर इज नोइंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज अप्लाइंग, फोर्थ इज इवेल्युएटिंग, फिफ्थ इज सॉरी जो फोर्थ है वो है आई मीन एनालाइजिंग, फिफ्थ इज इवेल्युएटिंग एंड सिक्स्थ इज क्रिएटिंग। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नॉलेज की डेप्थ उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। जैसे इफ यू जस्ट रिकॉल फ्रॉम योर माइंड कि यार मैंने क्या डेफिनेशन याद की थी, तो ये आपकी नोइंग है। लेकिन जब आप अपने ब्रेन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने अल्फाज में आपको कॉग्निशन हो जाता है और यू आर इन ए पोजीशन टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, माय डियर, ये अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज मोर बेटर देन नोइंग सिंपली। अगर आप कहें तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं और आपकी नोइंग चेक वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकता हूं, अगर आप कहें। राइट सर। पूछ लूं कुछ? पूछ ले सर। तो आप चलें, जस्ट आप मुझे बताइए कि हाउ पेटेंट्स आर ट्रीटेड इन अकाउंटिंग। जी जी, बस मैं अभी निकलता हूँ जी। अच्छा ठीक, ओके। नहीं नहीं, कहाँ से, वो जो 9 नंबर पे या दूसरा? ओके ओके ओके, जी जी, ठीक ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक, ओके। जी जी अजीम प्लीज। सर ऐसे इंटेंजिबल एसेट से ट्रीट होते हैं सर। नहीं, हाउ हाउ मैंने ये नहीं पूछा माय डियर, मैंने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द स्टेटस, आई हैव जस्ट आस्क्ड दैट हाउ दीज आर ट्रीटेड। सर these are treated as initial asset or cost सर। नहीं, ये ट्रीटमेंट ना हुई ना अली। अली स्मार्ट बने, स्मार्ट 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 स्मार्ट। जी, आप ये बताएंगे कि पेटेंट क्या उनको लिखा इनिशियल पीरियड में कैसे जाता है, और फिर आफ्टर नेक्स्ट ईयर्स जैसे जी सर। हम साल गुजरते हैं तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। अजीम बताइएगा। नो आइडिया सर, आइडिया नहीं हो रहा। अच्छा, अब अगर ये अंडरस्टैंडिंग में चीजें होती ना जी अजीम, जी सर। तो यू वुड बी इन ए पोजीशन कि जी आप बताते। राइट और सर। अगर आपने इसको किसी लेवल पे अप्लाई करके देखा होता तो ये कभी भी ना भूलती। सर ऐसी यही है मसला है सर हमारे ICMA का सर। सर, यही नहीं नहीं, यही बात आपके है। ICMA का नहीं मसला माय डियर, ये पाकिस्तान की पूरे सारी पाकिस्तान का ही यूनिवर्सिटियों का मसला यही है। मसला है अली। सर अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं सर, हमें प्रैक्टिकल ने कुछ भी नहीं बताया, ना सर इन्होंने एक्सेल बताया, ना इन्होंने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करना कैसे बताया, बस नॉलेज कर ली, पेपर ले लिया, खत्म काम। माय डियर, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज द होल प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। सर वैसे लम्स में ऐसे नहीं है, लम्स के अलावा हो सकता है बाकी में हो। लम्स में प्योरली प्रैक्टिकली करवाते हैं। हाँ ठीक, वो उनके है ही ना, देखा केस स्टडीज हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, ये वो है। लेकिन असल सर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी हमसे इस तरह से इसीलिए बेटर है क्योंकि सर वो उनके नहीं, पहले वो तो करने पड़ते हैं सर। आप जाके वो क्या कर रहे हैं, वो तो आर्टिकलशिप करते हैं। अब वहाँ तो जी सर। वो ऑडिट के जो इश्यूज हैं उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि जी रिपोर्ट जो है जी वो
क्वालिफाइड और मॉडिफाइड रिपोर्ट और वो सर रटे हम लगे सिर्फ पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इसलिए सर उनकी नॉलेज हमसे ज्यादा बेहतर होती है that's what I think there is some सर difference. ये आर्टिकलशिप का ही बस डिफरेंस है, बाकी सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम है। नहीं लेकिन वो बात वो साबित हो गई ना, वो जब आप आर्टिकलशिप कहते हैं तो वो एप्लीकेशन है अजीम, जी सर। और जो आपने एप्लीकेशन करके चीजों का नॉलेज मिला वो उनसे बेहतर है जो आप रटे लगाएंगे। जी सर। सर ये वैसे एक डायलेमा है, मैं बात करना नहीं चाह रहा था। अब कल मैं मेरे फैमिली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इसलिए मेरे को बड़ा हकीर नजर से देखते हैं। खैर वो तो अब चीज है, इसका मतलब भी यही है कि जो प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन है, वो चीज चूंकि आपने अपने हाथ से गुजार ली है, जाहिर बात है वो तो अब लाइक अभी आप लोग ऑडिट पढ़ चुके हैं? जी सर पढ़ चुके हैं सर। जी सर पढ़ चुके अच्छा, हैं। इस पे एक सवाल कर लूं आप लोगों से? कर ले सर, आता हुआ तो जवाब दे देंगे, नहीं तो फिर आपको जी कह जी, देंगे नो आइडिया। हाँ जी, आप देखें ना, आपने एविडेंस को एविडेंस से इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, आपने एविडेंस में सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना है, बताइए कैसे करेंगे चेक? एक्सक्यूज मी। सफिशिएंट को तो इस तरीके से चेक करेंगे कि जो आप एविडेंस, जो आप ओपिनियन उसकी बेस पे फॉर्म करेंगे, अपनी ओपिनियन बनाएंगे, उस पे आप आपके बेटा एविडेंस सफिशिएंट हो कि वो दोबारा आपकी आपकी ओपिनियन को आवाज, सपोर्ट कर अजीम सके। अजीम दोबारा बात कीजिएगा प्लीज, क्लियर नहीं हुई बात। सर आपके एविडेंस इतने इनफ हो कि वो आपकी जो ओपिनियन आप उस पे ड्रॉ करेंगे एविडेंस की बेस पे, वो उसको सपोर्ट करे, ये सफिशिएंसी है। और अप्रोप्रिएटनेस ये है कि वो उससे रेलेवेंट हो। मतलब ऐसा ना हो मैंने स्टोर का ऑडिट करने गया हूँ और एविडेंस इकट्ठे किए हैं, मैं कैश डिपार्टमेंट के एविडेंस लेके ओपिनियन राय काम करता हूँ, जबकि मैंने स्टोर का तो ऑडिट ही नहीं किया। तो एविडेंस के अप्रोप्रिएट से रेलेवेंट हो, और सफिशिएंट का मुताबिक मतलब ये है कि वो आपकी ओपिनियन को सपोर्ट करे। ये अजीम पता क्या है, ये आप गैस लगा रहे हैं, आपका नॉलेज क्लियर नहीं है। सर सफिशिएंसी सर इस तरह होगी कि सर ऑडिट एविडेंस जो होगा, सबसे पहले हम सर ऑडिट एविडेंस जहाँ से हमने ऑब्टेन किया, हम उसकी क्वालिटी देखेंगे सर, फिर हम ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी देखेंगे, फिर हम उसको जज करेंगे कि सर इज इट सफिशिएंट। अच्छा चले चले, ओके ओके, अली ने बात बेहतर की है, लेकिन बेटा जी मुझे बताएंगे क्वांटिटी और क्वालिटी हाउ वुड बी चेक्ड, व्हाट इज डिफरेंस लाइक हियर एंड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू योर एविडेंसेस? आप देखो ना, अब कंक्रीट मुझे एग्जांपल दीजिए, मैं इन चीजों को जानता हूँ, इस वजह से आप मुझे वो नहीं कर सकोगे। ये आपने अभी बात, अजीम ने भी बात की है, इधर उधर की बातें हैं, ठीक है? अभी क्वांटिटी और क्वालिटी को जरा पढ़ के भूल गए ना प्रैक्टिकली, और इसमें अभी मैंने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़े, मैंने रिसेंटली पेपर पास किया था ऑडिट का, बेटा उसमें जी, सारे स्टैंडर्ड्स बेटा पढ़े थे। जी स्टैंडर्ड पढ़ लिए होंगे, क्लैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग, क्लैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग माय डियर। बस सर वही नहीं है सर, बस पेपर पास करते जाओ और कुछ ठीक नहीं है, है। आप कभी अजीम मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? देन आई विल बी गोइंग टू टेल यू व्हाट इज डिफरेंस, ठीक है? राइट सर। ओ यस, मैं बताऊंगा, आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको एक स्टेटमेंट ऐसी दूंगा, फिर उस दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा भी, ये अप्रोप्रिएटनेस है और इसको हम कहते हैं सफिशिएंसी माय डियर, ठीक है? बट ठीक है सर। अगेन टीचर, इवन जो टीचर्स की ग्रिप इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फॉर्म में होगी, वो आपको बताएगा कि बेटा जी ये सफिशिएंसी है, ये अप्रोप्रिएटनेस है। सर आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमने जिस तरह से ऑडिट पढ़ी है ना सर, सिर्फ बुक रीड की थी, उंगली हाथ रख के, और कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था हमें सर। सर चले मैंने तो anyhow, सेल्फ तैयारी करके पेपर पास किया, टीचर पे तो मैंने डिपेंड ही नहीं किया। नहीं खैर, मैं आई एम नॉट टॉकिंग, मैं तो ये है कि एक एक एज ए होल बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, तो नॉलेज की क्लैरिटी दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग ना जी, वो उसके लिए अगेन पढ़ाने वाले की भी जो नॉलेज का, जिस बंदे का नॉलेज क्रिएटिंग लेवल का है, वो क्या बात है, जिसका नॉलेज जस्ट नोइंग है वो डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग उससे बेहतर है, अप्लाइंग उससे बेहतर है, एनालिसिस उससे बेहतर है, ठीक है जी?
और Yes. इवोल्यूशन उससे बेहतर है, क्रिएटिंग और उससे बेहतर है। एनी हाउ जी, आई थिंक आज मेरा ख्याल है कि हमारी डिस्कशन बड़ी अच्छी थी। क्या ख्याल है जी सर, जी सर। अजीम, आप कुछ बोले? मिस्टर अजीम, ऑफलाइन जी हो गया आपका। आज नहीं हमारी सर, डिस्कशन कैसी थी? अच्छी थी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू, मुझे थैंक यू। Thank you very वैसे ये much, लग रहा है sir. कि नवंबर के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। आई होप सो इंशाल्लाह। जी जी, जबकि अटेम्प्ट हम दे सकते हैं फरवरी में मेरे ख्याल से। तो 2 महीने होंगे, उसमें मैं चाह रहा था कि कम से कम दिसंबर में हम वो मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस आपकी तरफ से अगर हो जाए। जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। ओके जी, थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। उमर माय डियर, चलो ओए चलो।